सो हेलो नमस्कार टू द ऑल केमिस्ट्री लवर्स डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ द नियर फ्यूचर। मैं विजय कुमार सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इन केमिस्ट्री वाला चैनल रिगार्डिंग टू योर वन एंड ओनली केमिस्ट्री। In previous video we have discussed about the just a lot of properties of the alcohol as a what is the mean of alcohol, types of the alcohol on the basis of number of OH group and hybridization state. Further we have discussed about the just nomenclature and structure of the alcohol. Now the time to discuss about the important topic, that is the just isomerism in alcohol. So if we'll go with the just isomerism in alcohol, this is the isomerism in alcohol. If we'll go with this topic, then just we can say monohydric alcohol, which are in your syllabus. Monohydric alcohol shows chain position, functional group with the just ether, and just we can say metamerism and tautomerism. Just your metamerism and tautomerism will absent in alcohol, and optical isomerism is the best type of the isomerism which are exhibited by alcohol. If we'll go with this statement, then we'll take just 2 to 3 practice. Just we can take as a question, calculate just isomers. Number one formula is your C4H10O. All isomers. Number two, C5H12O. Total isomeric alcohol. And third question, that is very important, just alcohol with minimum carbon atom having optical isomerism. These are the just three important questions. First of all, I would like to go with the just C4H10O. If we'll go with the just formula of alcohol, this is the solution. This is your solution first. Regarding to first solution, here is the formula CnH2n plus 2O for the alcohol. If we'll go with the just number of carbon atom, then those are 4. So it will be C4, 4 to the 8 and plus 2 10, and this is the O. This is for the alcohol as a butane one. Now we have to calculate the total isomer. So first of all, we'll go with the chain isomerism. CH3, CH2, CH2, CH2 and OH. Second question, iso, CH3CH3, CH2OH. Now the time to discuss about the third isomer, that is the 3 degree alcohol. This is the 1 degree and this is also 1 degree. So we can take the 2 degree alcohol also. CH3CHOH, CH2 and CH3. These are the just isomeric alcohol. And if we go with the just function group isomer, then as a functional group isomerism, here it will be ether. So regarding to ether, we can take the fifth example, CH3O, CH2, CH2 and CH3. This is the sixth isomer, CH3O as a metamer by the changing of substituent को change कर देंगे बेटा. This is the next
पर्टिकुलर CS3 CS2 OCS2 CS3। तो ये था आपके पास में पर्टिकुलर एंड आइसो, जस्ट नियो पॉसिबल नहीं है। तो सेकेंडरी, टर्शरी और ये प्राइमरी आ चुके हैं। ये आपके पास में डिफरेंट अल्कोहल, सॉरी ईथर। सो राइट आंसर इसका होगा आपके पास में टोटल 7 आइसोमर्स, जहां आपके पास में ये होगा ब्यूटेन 1 ऑल, ये हो गया आपके पास में 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये हो गया आपके पास में 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये हो गया आपके पास में ब्यूटेन 2 ऑल। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे कि इसमें 1 डिग्री अल्कोहल कितने हुए, 2 डिग्री कितने हुए, 3 डिग्री। तो CS2OH 1 डिग्री अल्कोहल होता है, हम पढ़ चुके हैं, या प्राइमरी अल्कोहल। ये आ गया आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल, जिसे हम सेकेंडरी अल्कोहल भी कहते हैं। और ये आता है आपके पास में 3 डिग्री अल्कोहल, जिसे हम टर्शरी अल्कोहल भी कहते हैं। तो यहाँ CS2OH 1 डिग्री अल्कोहल, CS2OH ये भी 1 डिग्री अल्कोहल, CHOH ये 2 डिग्री अल्कोहल के रूप में काउंट होता है, और COH ये 3 डिग्री अल्कोहल के रूप में काम होता है। मीन्स काउंट होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल आपके पास में 2 आ चुके हैं, एक 2 डिग्री आ चुका है, एक 3 डिग्री अल्कोहल आ चुका है। 4 कार्बन के रिगार्डिंग इसी में बात करें तो ईथर, ये आपके पास में एसिमेट्रिकल, ये एसिमेट्रिकल, ये भी एसिमेट्रिकल। इसका नेम होगा आपके पास में मिथॉक्सी, नंबर 1 पे प्रेजेंट है मिथॉक्सी, सो दिस विल बी 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये मिथॉक्सी ग्रुप नंबर 2 पे आ गया, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। और ये आता आपके पास में इथॉक्सी इथेन। तो ये थे आपके पास में टोटल आइसोमर 7 आइसोमर, जो कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में बाइफर्केट कर दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है आपके पास में, और टोटल आइसोमर विद द IPC नेम। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। इंटेक्स NCERT दोनों क्वेश्चंस को कवर कर रहा है ये वीडियो, तो इस वीडियो को सीरियसली लें, बिकॉज ऑफ इट्स टू इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके बोर्ड के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, एक C4H10O और एक C5H12O, और थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट करेगा। इसी सीक्वेंस में बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आता है आपके पास में, सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करें, C5H12O के टोटल आइसोमरिक अल्कोहल पूछ रहा है। और आइसोमरिक अल्कोहल पूछा तो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 5 कार्बन के लिए 8 सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। आइसोमरिक अल्कोहल पूछ रहा है तो नो डाउट उस पोजीशन में आंसर भी इसका राइट 8 आइसोमर ही होगा। कैसे होगा ध्यान दें, पर्टिकुलर बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। C5 सेकंड सॉल्यूशन नंबर 2, 8 आइसोमर में आपके पास में नंबर 1 बनता है N पेंटाइल, तो ये कर दिया आपने 5 कार्बन के लिए N पेंटाइल। फिर आता आपके पास में नंबर 2 आइसोपेंटाइल, आइसो ग्रुप के लिए आपने ये कर दिया, रिमेनिंग कार्बन यहां रख दिया, ये हो गया 3N25। N आइसो के बाद में आपके पास में आता है नियो के लिए सराउंडिंग में 4 कार्बन होने चाहिए, ये प्रेजेंट है। उसके बाद में आपके पास में आता है सेकेंडरी एक्टिव के लिए ये स्ट्रक्चर होगा आपके पास में। फिर आता आपके पास में आइसो सेकेंडरी एक्टिव, कुछ इस प्रकार से, इसको आइसो में कन्वर्ट कर दें। फिर आता आपके पास में सेकेंडरी, कुछ इस प्रकार से, CS2 CS3। सेकेंडरी के बाद में आपके पास में आता है 3 डिग्री,
7th आइसोमर के रूप में। ये आता है 3 डिग्री के लिए पर्टिकुलर, कुछ इस टाइप से कर सकते हैं हम। 3 डिग्री के बाद में आपके पास में आता है आइसोमर 1 2 3 4 5 6 7। 8th आइसोमर आपके पास में होगा एक्टिव, तो ये कर दिया आपके पास में CH3 CCH3, इसको आप कह सकते हैं CH2 CHCH3 और ये CH2। इन सभी में अल्कोहलिक ग्रुप अटैच करना है, तो ये कर दिया आपने OH, ये कर दिया आपने OH, ये भी OH, सेम OH 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 और ये कर दिया आपने OH। इसका IPAC नेम ले तो आपके पास में आता है पेंटेन 1 ऑल। यहां इसकी बात करें तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। यह आता आपके पास में 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल या प्रोपेनॉल। प्रोपेन 1 ऑल कहें तो ज्यादा बेटर होगा। यह आपके पास में आता है पेंटेन 2 ऑल। यह आता आपके पास में 1 2 3 एंड 4, तो यह आता आपके पास में 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। यह आता आपके पास में पर्टिकुलर पेंटेन 3 ऑल। यह आता आपके पास में 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। यह आता आपके पास में 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। अब वही बात आती है आपके पास में, आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि इसमें 1 डिग्री अल्कोहल कितने होंगे, 2 डिग्री कितने, 3 डिग्री कितने। तो फिर से एक बार की अपनी बात को रिपीट करूं तो ये 1 डिग्री अल्कोहल CH2OH, CHOH 2 डिग्री अल्कोहल और COH आपके पास में 3 डिग्री अल्कोहल के रूप में आता है। 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और ये 1 डिग्री अल्कोहल। यहां बात करें तो CH2OH ये 1 डिग्री अल्कोहल आता है, इसको आपने कह दिया 1 डिग्री। CH2OH अगेन 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ CH2OH अगेन 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ CH2OH फिर से आ रहा है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल अगर आपसे पूछे जाए कितने होंगे तो टोटल आइसोमर आपके पास में 1 2 3 एंड 4 आइसोमर होंगे। 2 डिग्री अल्कोहल की फॉर्म में CHOH ये होगा, CHOH ये भी होगा और CHOH ये भी 2 डिग्री अल्कोहल ही होगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल आपके पास में 3 होंगे और 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो आपके पास में इस पोजीशन में एक आइसोमर होगा। फिर पूछा जाता है साहब कि इस 5 कार्बन वाले में ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्टिकली एक्टिव आपके पास में अल्कोहल 3 होंगे, 3 अल्कोहल। पूछ ले कौन कौन से, तो यहां आपके पास में सेकेंडरी एक्टिव देख सकते हैं, चारों ग्रुप अलग अलग है, एक H, एक लॉन्ग चेन, एक OH और एक CH3। एक होगा आपके पास में आइसो सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल, एक होगा आपके पास में एक्टिव पेंटाइल अल्कोहल। ये था आपके पास में ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल, उनके नॉमेनक्लेचर प्लस उनको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में क्लासिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप पढ़ें। इसी के साथ में ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है C5H12O के लिए। टोटल आइसोमर 8 आइसोमर, जिनमें से ऑप्टिकली एक्टिव 3 होंगे। इन ऑप्टिकल एक्टिव में आपके पास में एक आ जाएगा पेंटेन 2 ऑल, एक आ जाएगा आपके पास में 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, एक हो जाएगा आपके पास में 2 मिथाइल
ब्यूटेन 1 ऑल, तीनों के तीनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, यानी कि डी और एल आइसोमर का फॉर्मेशन करेंगे। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए थर्ड क्वेश्चन की बात करें। थर्ड क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है कि साहब मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, और वो कौन सा अल्कोहल है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो और किस प्रकार से वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, इस बात को भी अच्छे से पढ़ना है, जिसको हम पर्टिकुलर एल्केन हैलोजन में डीपली पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, एनाइंशोमर होने के लिए कायरल्टी का होना बहुत जरूरी है। तो इसी सीक्वेंस में बात करें तो या तो आपके पास में सॉल्यूशन नंबर थर्ड में मिनिमम कार्बन होने चाहिए कुछ इस प्रकार से ए बी सी डी कायरल्टी के लिए जरूरी है, जहां ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, सी भी नहीं होना चाहिए, डी भी नहीं होना चाहिए, चारों डिफरेंट होने चाहिए। तो अपने आप में ये वाला कार्बन आपके पास कायरल कार्बन होगा, और कायरल कार्बन शो करने के लिए आपके पास में वो एग्जाम्पल मिनिमम कार्बन वाला आता है ब्यूटेन 2 ऑल, जहां आप देख सकते हैं चारों अटैच ग्रुप डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, एक OH है, एक C2H5, ये आपके पास में ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो उस अल्कोहल का नेम अगर पूछा जाए कि मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, तो आप कहेंगे ब्यूटेन 2 ऑल अपने आप में एक ऐसा अल्कोहल है जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए पर्टिकुलर हम यूज करते हैं आमतौर पे चेन जहां से स्टार्ट हो रही है उस चेन को आप टॉप में रखें, ये टॉप में रख दिया, और C2H5 पे खत्म हो रहा है उसको बॉटम में रख दिया जाए, बाकी दो ग्रुप कहीं पे भी रख दिए जाए। तो एक तरफ बचता H, एक OH, तो हमने ये OH कर दिया, ये H, ये मिरर रख दिया। आपको D और L पहचानना है, तो D और L पहचानने के लिए आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताने जा रहा हूं, उस तरीके से आप अपने D और L को डिफाइन कर सकते हैं। इस कंपाउंड में यहाँ ये कायरल कार्बन आता है, ये भी कायरल कार्बन आता है, यहाँ सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का है, दोनों कार्बन हैं जुड़े हुए यहाँ से इस कार्बन से। तो यहाँ परमाणु भार का सीक्वेंस देखते हैं, तो नंबर 1 ग्रुप ये आता है, नंबर 2 ये आता है, और नंबर 3 ये आता है। अगर सीक्वेंशियली बात करें, इस H को भूल जाए तो एक क्लॉकवाइज जा रहा है 1 2 3, क्लॉकवाइज जा रहा है तो डी फॉर्म होना चाहिए, लेना आपको उल्टा हमेशा जो दिखे उसका, क्योंकि यहाँ इस H का इंटरकन्वर्जन कराना पड़ेगा जो कि एक लंबा प्रोसेस होगा। तो दिख रहा आपको D है तो आपको लेना है यहाँ पर L आइसोमर, तो ये L ब्यूटेन 2 ऑल होगा, और ये होगा आपके पास में D ब्यूटेन 2 ऑल, जिसको आप यूं भी कह सकते हैं माइनस ब्यूटेन 2 ऑल कह सकते हैं, और इसको प्लस ब्यूटेन 2 ऑल कह सकते हैं। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये आ गया डी का मीन, यहाँ डेक्स्ट्रो तो रोटेटरी है, और एल का मीन यहाँ पर लीवो रोटेटरी है। ये दो फॉर्म आपके पास में पॉसिबल है, और वो मिनिमम कार्बन आपके पास में 4 कार्बन आते हैं। ये था आपके पास में अल्कोहल में आइसोमेरिज्म, अच्छे से पढ़े। सो डियर केमिस्ट्री लवर्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ द नियर फ्यूचर, ये था आपके पास में पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म अल्कोहल, पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के साथ में और नोमेनक्लेचर के साथ में हमने इन क्वेश्चंस को लिया है। इसी प्रकार से आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में विद जस्ट न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड जस्ट प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द अल्कोहल। अल्कोहल के निर्माण की विधियां, अल्कोहल कैसे बनता है, पर्टिकुलर लैबोरेटरी में कैसे बनता है और इंडस्ट्री में, इन सब की बात करेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।